Assalamu alaikum everyone, and I have a very good morning. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम जो start करेंगे इंशाल्लाह, that is as Dr. Saiba said, is about the okay, hold on a second. So we are going to start with the assessments today. By far, I believe that most of us have already very good idea that how to use various AI tools and how to engineer the prompts. So yeah, I was talking about that we have become expert to some extent that we can engineer prompts, whatever we are having in our mind that we want to have some output from the AI tools. So let's see how we can do these three tasks, which are assessments and then surveys and probably plagiarism checking by using AI tools. So this is going to be the plan for today. My team members are Mr. Sajjad Sikandar from Department of Criminology, Ms. Khola Farooq from Computer Science Department, and this is going to be the flow of the day. We will be talking about assessments before the break, and then we will continue with the surveys and plagiarism checking. So AI in assessment. Whenever we start teaching, the main goal is for a teacher is to ensure that we are doing it in a great way and our students are learning. But there are some challenges which we face usually in traditional methods. We will discuss about that and how we can use these AI-based tools to mitigate or to overcome those challenges which we face in traditional methodologies. So we are having AI for smarter and personalized learning. This personalized learning is basically, you can say, the key thing in today's lecture, that how we can have something you can say personalized for our students. Some are very high achievers, some are very challenging students. So how we can give each of our students a good piece of advice by using these tools. This is going to be the outline for this session's talk, that is objectives. We will talk about the objectives, making of assessment, quizzes, questions, and some other things, and then analyzing or marking the assessment. This is going to be one interesting part also. So objectives for today's talk is to understand how AI enhances students' assessments. We take quizzes, we take exams, but what should we include and what should we not sometimes is very difficult because we have a variety of different students. For example, in this hall, I can say we have 5 or 6 different faculties sitting. Somebody is having very good concept about physics, somebody is having good concept about computer science or biology. But if we are having the mixture of different students in a class, how we can use these tools to make it interesting for the students. And then to engage students in hands-on AI-powered assessment activities. You will be doing some activities with me, and then ultimately learning new tools for assessment and personalized feedback to effective learning. That how we can use some of the specified tools which are available freely or partially freely, and then inshallah by the end of the session you will be having a good idea that how to make assessments and how we can save a lot of time and effort. So as a teacher, let me ask you, what do you feel is the most difficult part when we talk about the assessments of our students? क्या हो सकता है? Please, any of you. जी. Right. डीन साहब ने कहा फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल ठीक है. एनीवन एल्स? श्योर, बायसनेस ना हो, बिल्कुल ठीक है. यस मैम. Dr. Shamshad from Psychology Department.
ट्रेडिशनल जो असेसमेंट होती है उसमें सबसे बड़ा टाइम फैक्टर हमारे लिए आ जाता है, क्योंकि हमें एक टाइम में हम बहुत सारे कोर्सेज ले रहे होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, और इंडिविजुअल को जो क्वालिटी फीडबैक होती है वो देना इम्पॉसिबल हो जाता है। Right. जैसे हम केस स्टडीज़ लेते हैं साइकोलॉजी में, तो वो बहुत बड़ा कंटेंट होता है। अब उसके इंडिविजुअली अगर मैं सबको फीडबैक दूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है। So the time is main challenge. यही है ना डॉक्टर साहिबा? Right. Yes, she is right. Any other thoughts? Yes, ma'am. Dr. Aisha. Right. So मैडम का जो क्रस्ट था कमेंट का वो ये था that we have different variety of students. We have high achievers, we have mediocres, and then we have challenging students. Exactly. So ये सारे challenges आते हैं among many others. I have just shortlisted these three. Time consuming होता है. If I give you a PDF of 10 pages और मैं आपसे कहूँ इसमें से 10 MCQs निकालें तो आपको कितनी देर लगेगी approximately? Probably 1 hour or more than that. Right? So we can do it in very quick way by using these tools. फिर limited feedback होता है. जब हम students को paper check करके, quiz check करके देते हैं तो we cannot comment on each and every question, right? या किसी एक student को हम अलग से बिठा के नहीं बता सकते कि okay fine, आप में ये प्रॉब्लम है, आपका कॉन्सेप्ट इस चीज़ में कम है, आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मोलेकुलर बायोलॉजी को कर लें, या आपकी जो है वो पाइथन वीक है, ठीक, राइट? सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस एज वेल बाय यूजिंग AI टूल्स. एंड देन एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. What if we are taking quizzes, we are assessing our students, and meanwhile they are engaged with the class or maybe with the instructor, और उसमें ही उसकी learning भी हो रही है और motivation भी साथ साथ हो रही है. It can be in the form of a game, or it may be something else, some flashcard stuff or something जो थोड़ी सी engaging हो student के लिए और interest create करे, so that way we can improve the assessments of our students, साथ साथ उसकी learning भी होती जाएगी. So as you all know that how to use these AI tools, still I want to emphasize on specific features for using these AI tools, and these are automated question generations. You can customize a prompt which ultimately produce MCQs, true false, or long questions, essay type questions, scenarios, ये हो सकता है. And then this is important, we can generate rubrics that what point should be given for question 1 or 2 or something like that, and what difficulty is there for a question to the students. उसमें हम rubrics को हम consistently, fastly and objective wise we can achieve this goal. And then personalized feedback, student specific insights. If a student is doing something, उसको फ़ौरन से insights मिल रही हैं कि आपने question ठीक किया नहीं किया, और अगर आपने इसको सारा कर लिया है 70% मार्क्स है, तो what are the, you can say, shortcomings and how you can augment those shortcomings, ये भी हमें ये बताता है. Plagiarism वाला part somehow हमें बता सकता है. And then adaptive learning pathways, tailored learning suggestions. If my class is having a student who is coming from computer science department, उसका bio का कोई background नहीं था, but somehow we took him in a course और उसमें वो start कर देता पढ़ना bioinformatics सीखने के लिए. So it can tell that specific student among 100 students कि you need to learn about these basics of molecular biology, about DNA और RNA. So ये भी बहुत important है. So these are some of the key features when we take help from AI tools, that how we can make our assessments way better than the traditional methods. We know that, by now we know that prompts are very, very important. And we have to generate our own prompt. ऐसे ही है? Is that so? आवाज़ नहीं आ रही? Yes? Okay. So these are again those things which we are learning from the previous 3-4 days. And here I have an example of a prompt
for you to make your own prompt. अभी हम activity करेंगे इसके बाद. So just have a look that it should be clear and specific. So AI can give you better responses, and then iterative refinement. We can meddle in. अगर मैं ये सिर्फ prompt दे देता हूँ उसको, might be it has some element missing in this prompt. तो आपको दोबारा से उसको देखना है कि वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है. अभी मैडम ने जो वीडियो में एमा ने बताया कि 3.5 रहना, ठीक है ना, तो आपने उसको देखना है एंड यू हैव टू रीइटरेट इट मे बी अ फ्यू टाइम्स until you get your desired result. And adaptive assessments, individualized student support, आप कोई एक सिनेरियो भी बना के दे सकते हैं that I have this kind of student who is very challenging, he is weak in these areas, please make questions accordingly, ताकि उसकी लर्निंग भी हो जाए और चेक भी कर लें हम कि वो किस लेवल पर इम्प्रूवमेंट कर रहा है. And AI as a tutor, engaging and explanations feedback, we will see इंशाल्लाह कि किस तरह से वो इंगेज भी कर रहा है आपको और साथ साथ आपकी लर्निंग को इन्हांस भी कर रहा है. मे बी यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर, वो दोबारा से आपको एक चांस दे रहा है कि ओके अमंग 4 ऑप्शंस दिस वाज नॉट द राइट थिंग, मे बी यू कैन सिलेक्ट द अदर वन. तो इस तरह से वो आपको बेहतर तौर पे एड्रेस करता है जो आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं. सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट. इसमें सिंपल लिखा हुआ है, generate 5 multiple choice questions on the topic of photosynthesis for first year of BS Biotechnology. Ensure that the questions cover key aspects such as definition, process, reactants, products and importance of photosynthesis. ये अगर आप नहीं भी लिखते, if you want to keep it general तो भी ठीक है. Each question should have 4 answer choices. We have to ask the AI assistant कि आपने कितने questions बनाने हैं and how it should look like with only one correct answer. Maybe you can say okay with multiple correct options, right? तो ये आप पे डिपेंड करता है how do you think and how do you want to make it more exciting for your students. Also provide the correct answer for each question at the end. If you have made something और आपके पास आंसर नहीं है तो this is going to be again the same thing. आपको दोबारा से आंसर्स देखने पड़ेंगे मैनुअली और ये हम चाहते नहीं है. So that's why we can ask AI tool that please make an answer key or highlight the answers with the questions so it can make our life way easier. Okay, so let's start with the activity 1. So मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा and what you are going to do, ChatGPT या कोई भी अपना चॉइस का आप टूल यूज़ कर लें and then make or generate assessment questions. It may be true false, it may be MCQs, ये आपकी अपनी चॉइस है. और अगर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो 5 MCQs आप करके देख लें अभी और उसकी रूब्रिक भी आपने साथ उसको कहना है कि हमें बना कर दे. सो इन सेकेंड एक्टिविटी वी विल सी दैट हाउ बेस्ड ऑन दोज रूब्रिक्स आपको वही AI टूल उसके ऊपर कमेंट्स देता है या किस तरह से आपको पॉइंट्स बना कर देता है फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट, राइट. एंड वी विल डिस्कस द फाइंडिंग एंड शेयर इनसाइट्स. प्रोबेबली गूगल क्लासरूम पे टैब बन गया है इसका एक्टिविटी 1 के नाम से. आपके पास 5 मिनट्स हैं. थिंक अबाउट योर टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, और उसमें आप कोई उसी पे सर्च भी कर सकते हैं या आप उसको डेटा दे सकते हैं. एंड देन मेक दीज 5 MCQs विद रूब्रिक और उसको आपने उस पर अपलोड करना है. वी विल ओपन अ फ्यू ऑफ दोज रिस्पॉन्सेज हेयर और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग फर्दर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज़ आस्क. All members are requested to proceed with the assignment. फिर गूगल लिंक पे हमने टैब क्रिएट की है एक्टिविटी 1 के नाम से, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड कर दें प्लीज़. हम वी विल ट्राई कि हम हर एक फैकल्टी में से क्वेश्चन को जो है ना वो देखें और डिस्कस करें यहाँ पे. सर वो कह रहे हैं कि प्रीवियस स्लाइड ज़रा डिस्प्ले कर दें. And one more thing, yes, while making rubrics, you can ask the tool to align this with Bloom's taxonomy or maybe with your CLOs, right? आप अगर आपके डिपार्टमेंट में वो ज़रूरी है तो उसके साथ भी आप इनलाइन कर सकते हैं. वो आपको टेबल दे देगा, अगर नहीं देगा तो फिर आप उससे पूछें कि टेबल भी एक दे दे. सो उस रूब्रिक के हिसाब से वो उसको मैनेज करेगा. when you will evaluate, when you will ask the tool later on in second activity कि इसको evaluate करें.
So our team is there. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, वी कैन एड्रेस दैट. ओके, इसमें भी उसी तरह से पैटर्न है वैसे ही. ठीक हो गया. ओके फाइन. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. ये देखिएगा प्लीज़. इसमें उसने टेबल एक बना दिया है, रूब्रिक्स सेट कर दिए हैं और इसमें क्राइटेरिया भी लिख दिया है कि एक्सीलेंट पे 4 पॉइंट्स हैं, एक्यूरेसी देखनी है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, मींस काइंड ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसने अप्लाई कर दी है इसमें ऑलरेडी. सो व्हेन यू विल आस्क इवैल्यूएट द आंसर्स, वो इसी हिसाब से आपको आउटपुट भी देगा. सो दिस इज गुड, दिस इज गुड. सर ये ना रूब्रिक्स में वैसे वो ज़्यादा पॉइंट्स भी देते हैं. सॉरी, आपकी बात ठीक है कि रूब्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट मोड में, चाहे आप उसमें असाइनमेंट ले रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर रूब्रिक्स हैं या लैब कंडक्ट करवा रहे हैं तो इट इज़ स्केल डाउन ना. लेकिन ये अब MCQs है सर, इसमें तो रूब्रिक्स तो ऐसे नहीं, या तो ज़ीरो होगा नंबर या 1 होगी. जैसे डॉक्टर आतिफ साहब ने रूब्रिक्स जो बनाए हैं, मतलब कि या तो उसके 0 है या 1 है. सर इसमें यही तो हम बेसिकली सीख रहे हैं. आप इस तरह भी से कमांड दे सकते हैं और खुद से रूब्रिक भी दे सकते हैं. यू कैन टेल द सिस्टम कि आप इस तरह 0 1 करें, राइट. प्रोबेबली सर ने हो सकता है इस तरह का प्रॉम्प्ट दिया हो, विद रूब्रिक्स कर दिया. ठीक है. सो सर ये हम खुद से भी रूब्रिक्स अगर हमने बनाई हुई है, वी कैन प्रोवाइड दैट, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूएट करेगा. ये इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमें थोड़ा सा नो हाउ हो जाए किस तरह से हम रूब्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, अच्छा सिखा रहे हैं आप. अगर आप हमें हेल्प आउट कर सकें, जिस तरह हमारा टेस्ट क्विज लिया जा रहा है ऑटो जनरेटेड, अगर वो भी आप हमें सिखा दें तो वो अच्छा बने. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैडम ज़रूर. अब ये हमारी एक्टिविटी 1 थी. इसके साथ ही हम मूव करेंगे सेकंड एक्टिविटी की तरफ और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो आप देखिएगा, आपको वो भी आ जाएगा जिस तरह हम एवेल्यूएट कर रहे हैं आपको. प्लस वी विल आल्सो लेट यू नो सम ऑफ द एक्साइटिंग टूल्स जो आपको सब कुछ करके बड़े आसानी से दे देते हैं. अभी आपकी एक्टिविटी जो भी हमने की है, इट विल कंटिन्यू. सो बी विजिलेंट. ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, इसको हमने देखना है बिफोर वी आस्क द सिस्टम टू एवेल्यूएट और टू गिव सम मार्क्स टू द स्टूडेंट. इसमें डिफाइन क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा है, हमने उससे आउटपुट देना है. यूज़ AI टू कॉम्प्लीमेंट, नॉट टू रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट. So still you have to review the output of the system कि क्या उसने किसी question का answer गलत तो नहीं दे दिया. So we have to just look into the detail, some of the extent कि क्या बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि ये तो irrelevant है. तो you have to keep in mind कि ये थोड़ी सी mistake कर सकता है. So we have to review. Experiment with various prompting techniques as we were having different types of inputs जिसमें हमारे पास rubrics 0 1 की फॉर्म में भी थे, डिफरेंट अदर फॉर्म्स में भी थे. कुछ में लिस्ट जो है वो क्वेश्चन के साथ ही आंसर था. किसी ने ऐसा भी बनाया होगा जो एंड पे एक लिस्ट दे दी होगी कि 1 का आंसर ये है, 2 का ये है. सो वेरीफाई AI रिस्पॉन्सेज फॉर एक्यूरेसी एंड बायसनेस. प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव AI जनरेटेड फीडबैक. यू हैव टू टेल द सिस्टम सो फार दैट यू आर डूइंग गुड. उसके बाद हम नेक्स्ट उससे काम करवाएंगे, राइट. सो विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी you are going to give another prompt to the system with your own answers. कोई भी आप assume कर लें, student A, student B, student C, और उसको आगे options दे दें. For example A, B, B, C, C. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. So it will give some evaluation for you कि ये student ने किस तरह से किया है. So let me show you जो मैंने किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. For example, this was the prompt I gave to AI tool और इसने मुझे यहाँ पर MCQs दे दिए. ओके फाइन. उसके बाद मैंने कहा रूब्रिक्स भी बना दो, उसने मुझे ये रूब्रिक्स दे दिए. ओके एंड देन फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इससे ये कहूँ कि मुझे इसको वैल्यूएट भी कर दे. इसने पॉइंट्स दे दिए हैं कि इतने पॉइंट्स एक्सीलेंट होगा और इस तरह से ये सारी वैल्यूएशन चलेगी. ब्लूम टैक्सोनॉमी भी मैंने इसके साथ अलाइन की है. अब मैंने से कहा नाउ ग्रेड द स्टूडेंट्स एंड गिव अ पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो उसने मुझे कहा है दैट गिव मी द आंसर्स. सो लेट्स सपोज यू आर हैविंग 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास और आपने उनके आंसर्स लिख लिए हैं. अभी आप जो एक्टिविटी करेंगे नेक्स्ट, उसमें आपने उनको खुद से सोच के उसके आंसर्स लिख देने हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, मैंने स्टूडेंट 1 और 2 जिस तरह ये लिखा हुआ है, फिर उसमें ये चीज़ें कर देगा. फॉर एग्जाम्पल माई आंसर वॉज वेरी सिंपल. मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके देखा दैट हाउ स्टूडेंट 1 is selecting B, C, D, A, C और student 2
ने सारे ही 20 सेलेक्ट कर लिए. So what it gives me is interesting. ये देखिए उसने बता दिया मुझे करेक्ट आंसर्स का. तो स्टूडेंट 1 का ये सारा सिनेरियो है, राइट? नॉलेज उसका, कॉम्प्रीहेंशन, बाकी चीज़ें एप्लीकेशन एनालिसिस में वो पुअर था और इसके ग्रेड्स आए 17 आउट ऑफ 25, राइट? और इसने बता दिया कि सेटिस्फैक्ट्री है. एंड इंटरेस्टिंग थिंग अगेन इज द फीडबैक जो उसको बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस, राइट? एंड दिस आउटपुट सेज great job on recalling key facts of photosynthesis. You correctly identified the chloroplast role and understood the function of leaves in photosynthesis. ये उसने उसको बता दिया स्टूडेंट को that you are good in that. However, try to work on applying this knowledge to new situations. Review how reactants contribute to the overall process and practice analyzing different factors affecting photosynthesis. Keep improving. So जो हमने स्टार्ट में देखा था that it gives a lot of things to us जो हम शायद नहीं कर पाते, क्योंकि डेफिनेटली नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनको 10 क्वेश्चंस दिए हैं तो 400 क्वेश्चंस हैं, राइट? और मेरे लिए इतना टाइम मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट इफ़ आई एम गिविंग सिंगल कमांड टू द सिस्टम कि ये रूब्रिक्स थी, ये क्वेश्चंस थे, आंसर्स भी आप उसको बता सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो ये आपको सारा कुछ बनाकर दे देता है. और ये स्टूडेंट नंबर बी का है, इसमें उसने बता दिया नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट? और समरी भी दे दिया आपको कि आपके पास जितने स्टूडेंट थे उनकी समरी क्या है. सो नाउ विद दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड एक्टिविटी. इसको आप देख लें प्लीज. टीचर्स विल सबमिट सैंपल स्टूडेंट आंसर टू द चैट जीपीटी या जो भी आप. सर हमने पहले भी देखा है. सर का क्वेश्चन है कि अगर मैं फीडबैक देता हूँ और एक मशीन देती है, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस. यस ऑफ कोर्स, हमने पहले देख लिया है कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स योर जजमेंट एज ए टीचर इज ऑलवेज देयर, और आपने बायसनेस भी देखनी है, बाकी चीज़ें भी देखनी है. तो उसमें मेरा ख्याल है कि इसको हम एज ए असिस्टेंट ही रखें. अगर मैं देखूँ कि वाकई इसने जो भी मुझे कमेंट किया है फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी गुड, आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक है, तो वाकई क्या वो स्टूडेंट उसमें पुअर है या नहीं, तो मैं उसको मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स टीचर या लेकिन सर हेल्प हो जाती है ना, काफ़ी हेल्प जी. ओके, इसमें आपने अगेन प्रॉम्प्ट देना. जो भी आपने विंडो ओपन की हुई है, आपने रूब्रिक्स जनरेट किए हैं, उसको प्लीज़ आप कमेंट दीजिए, प्रॉम्प्ट दीजिए कि फीडबैक दे दे रूब्रिक की बेस पे. एनालाइज एआई जनरेटेड कमेंट्स फॉर एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस. इसको ज़रूर हमने देखना कि क्या वाकई वो इस तरह से ठीक हमें बता रहा है या नहीं. एंड डिस्कस प्रोस कॉन्स ऑफ एआई असिस्टेड ग्रेडिंग. सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन कि आप एज्यूम कर लें, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट्स कर लें और उसे प्रॉम्प्ट दें कि इसको एवेल्यूएट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक्स. सो प्लीज़ डू इट. यू हैव 5 मिनट्स फॉर दैट. तो जब हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इसी तरह से आपने अपलोड कर देना. इसे एक्टिविटी 2 के नाम से फोल्डर बना होगा गूगल क्लासरूम में, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स आया है इन लाइट विद दिस फर्स्ट एक्टिविटी. उसमें यू कैन सी that how it is giving that excellent work, Ali. You have a very strong understanding of core concept of discrete structures. So appreciation is there. By this, I hope morale of the student will be more higher जब आप इस तरह से उसको कहेंगे. And let's look at the another student, Fatima. इनका I think 3 score था. So good effort, Fatima. You have demonstrated a good understanding of some of the key concepts. And then Umar, who didn't perform well, challenging student tha. It appears you need to strengthen your understanding of the basic principles of discrete structure. Don't be discouraged. Nice. I recommend starting a review of the fundamental definitions of set operations. So it is giving more, instructions to the student somehow कि आप क्या क्या कर सकते हो and which are the weakest areas you have and you should work on those areas. मिस शीमा यूसुफ ने भी ये किया है. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इनके आंसर्स ये लिखे हुए हैं. ओके, सो दीज आर द मार्क्स फ्रॉम गिवन आंसर्स. अहमद, अली, असद. सो लेट्स लुक एट द फीडबैक. So it is one-liner feedback. For example, Ali, who got 0 out of 5, it says needs remedial lessons and more practice. Ahmad and Amar needs targeted review. So it depends on the prompts that how do you ask
the assistant, the AI assistant, to give us some of the reviews or feedback for the students. With this, I think we should move on. और हम देखते हैं कि what we can do if we are having something, you know, fancy available already on the internet. जरा सर का देखिएगा, डॉक्टर इशफाक. अच्छा, one exciting thing which I used to do is at times, अगर आपने for example you are making 20 true false, आपने 20 true false बना लिए, you reviewed the questions were very good, लेकिन वो कोई true है, false, true, false, true, false. So what you can do that may make your life easier, हम उसको command दे सकते हैं that please arrange, for example, true, 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 3 true and then 3 false. Are you getting my point? ठीक है, हम सारे ट्रू भी कह सकते हैं उसको, that please make all true questions, but that would be unfair, I think. You can just play with the prompts and you can get desired results. Sorry, sir. ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि सेम आंसर्स थे. ठीक है, राइट. ऊपर कीजिएगा. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. डॉक्टर साहब ने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने उसे कहा है कि मोस्टली बी थे ऑलरेडी, तो स्टूडेंट ने फ्लूक्स लगा दिए, तुक्का लगा दिया दैट इट शुड बी 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 बी. तो ये फीडबैक कैसा है, राइट? सो इस केस में ऑफ कोर्स उसको नहीं पता कि उसके ज़हन में क्या था, उसने उसी अकॉर्डिंगली उसने उसको फीडबैक दे दिया जो कि पॉजिटिव था. ऐसी है ना सर? सो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो, बीइंग अ टीचर, आई वुड से देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो. हम इसीलिए सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस रखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट हो सकते हैं. सो ही वाज क्वाइट लकी कि उसने सारे सही लगा दिए. सो आई थिंक वी शुड कीप इन माइंड कि जब हम बनाएं इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन भी करें तो सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए. थैंक यू सर. जी सर. जी जी बिल्कुल सर, दैट इज़ प्राइमरी थिंग. प्राइमरी थिंग तो यही है ना कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ रिप्लेसमेंट. सारा कुछ खुद भी देखना है, उसको देखना है, एनालाइज करना है. सो मूविंग फॉरवर्ड, एज यू कैन सी देयर वर सम डिस्क्रिपेंसीज. कुछ लोगों को ये ईजी लग रहा था, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा था. सो व्हाट इफ वी हैव समथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जो आपके लिए ये काम आसान कर दे. सो दीज आर, मे बी देयर आर मैनी अदर टूल्स, लेकिन दीज 3 टूल्स विच आई हैव shortlisted, quizzes.com, socrative.com, Eduate AI, आप इससे familiar होंगे, yesterday भी इस पे बात हुई थी. So I will be talking about quizzes.com. So इसमें मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमो देके बताऊंगा. So be vigilant, क्योंकि आपने दोबारा उसी के ऊपर कोई ना कोई क्विज जनरेट करना है. It's a free, partially free, यानी कि आप स्टार्ट में फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं. You have some of the I think 20 available options जिसमें आप कोई ना कोई क्वेश्चन क्विज जनरेट कर सकते हैं. Later you have to pay. So it is easily available with your LU's ID. आप उसे Google के साथ करेंगे लॉगिन तो हो जाएगा. So let's see, have a look कि किस तरह से ये quizzes.com वर्क करता है. ये इसका इंटरफेस है. When you will log into this tool, it will be like this. शायद I am from biology, so it is giving me some already present topics. इसमें से भी आप क्विज बना सकते हैं और आप खुद से भी इसको कोई
कमांड दे सकते हैं, तो वी विल सी कि किस तरह बनाते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ क्रिएट से पे जाएंगे तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से आप असेसमेंट को चूज कर लें एंड देन क्लिक जनरेट विद एआई। आपके पास अगर डेटा ऑलरेडी है, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, बट आई एम चूजिंग दिस ऑप्शन। और यहाँ मैंने इसको क्लिक किया, इट इज़ आस्किंग मी कि आपके पास कोई मटेरियल है, कुछ है ऐसा तो बता दें, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। सो यू हैव डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट है, एंड देन यू कैन आल्सो यूज सम वेबसाइट। फॉर एग्जांपल WHO की वेबसाइट से मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड आई हैव गिवन देम अ टास्क, जस्ट एक्सप्लोर द WHO's वेबसाइट, आई विल टेक अ क्विज टुमारो फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो आप उसका भी लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, यहाँ पर वो आपको पूछेगा दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू वांट, ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे 5, 8 जितने भी है। लेट्स क्लिक ऑन 5। सो कंटिन्यू, हाँ सॉरी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे वैसे क्या लिख दिया है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप इसको बड़ा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, बेसिक्स फॉर BS Bio। अच्छा, यहाँ पर आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये ग्रेड 5 तक है, किस तरह से है। ये वर्क करेगा, वट एवर टॉपिक यू आर गिविंग और फाइल यू आर गिविंग पुटिंग इन, तो ये क्वेश्चंस आपको जनरेट करके दे देगा। देन यू कंटिन्यू, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बायो सब्जेक्ट है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, कंटिन्यू करेंगे। सो इट्स वर्किंग फॉर यू। अब वो आपको साथ में कुछ प्रॉम्प्ट्स बता भी रहा है कि क्या इसमें से आपको कुछ और ऐड करना है, कुछ चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल फंक्शन एंड ऑल दैट, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, मैं ये क्लिक कर देता हूँ, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सब टॉपिक भी आप लिख सकते हैं इसमें। एंड देन आई क्लिक ऑन जनरेट क्विज। सो वे फास्टर देन द नॉर्मल ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ AI। ऐसे ही है, आपने देखा कि सिंपल क्लिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस बन के सामने आ गए, एंड हियर यू कैन डू डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज विद द क्विज। आप इसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 1 है, MCQs टाइप 2, 3, 4, 5 ही मैंने बनवाए। इसी तरह से वो पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू ऐड सिमिलर AI क्वेश्चंस फ्रॉम AI, सो वी कैन आल्सो क्लिक ऑन दैट, बट फॉर नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट, हम इस पे ही रह रहे हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्टल, जिसमें आप ऐड सिमिलर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यू कैन ऐड आंसर एक्सप्लेनेशंस इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट क्विज, यू कैन हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें ये कन्वर्ट कर सकता है, एंड देयर इज़ मोर ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इट कैन डू इट फॉर यू। इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट टू उर्दू और सम अदर लैंग्वेज, इट कैन डू दैट आल्सो। और आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आपको लगता है स्टेटमेंट्स आर वेरी एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आप उसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सिंपलर क्वेश्चंस करें। सो लेट्स ट्राई दिस वन। सो ये इसने आपको थोड़ा सा इसको सिंपल कर दिया, राइट? ये एडिट था, ये अनचेंज इस तरह के दिख रहे थे, और जो अभी उसने किया वो कुछ इस तरह से हो गया, राइट? उसमें इक्वेशन और इस तरह की चीज़ें उसने हटा दी हैं टू मेक इट मोर ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू कंडक्ट दैट। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, मैं डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ। मैं लेट्स से मैंने डिस्कार्ड कर दिया। नाउ अगेन वी आर ऑन द सेम ऑप्शन पेज, जिसमें आप क्वेश्चंस को, क्विज को
वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट दिस टू मेक इन अ रियल लाइफ सिनेरियोज, दिस इज इंटरेस्टिंग, आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे. सो दोज क्वेश्चन सेम है बट इट विल कन्वर्ट इट इनटू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन था and it has made it in a real life scenario. For example, Aiden is studying the process of photosynthesis. In his biology class, he learns that plants use sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. What is the overall equation for photosynthesis? So if you want to make this thing, you can go for it. आप इसको भी यहाँ से save changes कर सकते हैं. And if you don't want to, discard कर दें, वापस चले गए. So आपने ये भी एक्सप्लोर कर लेना है. दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ ओपनली अवेलेबल. आप जब अभी बनाएंगे इस पे क्विज, तो आप इसमें से जो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड आप उसको बना सकते हैं. सो मैंने यहाँ से इसको देखना है एक दफ़ा कि क्या ये ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक व्हेन योर स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ गेम. अभी आपसे हम करते हैं क्विज, करवाएंगे भी, तो you will see that this is quite interesting. ये question 1 है, 2 है. So this is preview for a teacher, right? ये मैंने देख लिया. Now I publish this. तो अभी तक मैंने 4th एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं. 20 मेरे पास अवेलेबल थी, right? So here you can see कि आपका क्विज बन गया, जनरेट हो गया. Now what I can do is मैं यहाँ से इसको शेयर विद स्टूडेंट्स और शेयर विद टीचर्स कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ. देयर आर सम अदर ऑप्शंस आल्सो. अगर मैंने शेयर करने हैं तो ये मेरे पास इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा. आप इसका लिंक भी कॉपी करके दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. एंड यू कैन आल्सो जनरेट QR कोड, जैसे ये यहाँ पे. ठीक, तो आप वो स्टूडेंट्स को दें क्लासरूम के अंदर बैठे, उन्हें स्कैन दिस एंड जस्ट डू इट, तो वो हो जाएगा फौरन. So यहाँ तक if there is any question so far, you will do it and I am here, my team is here, inshallah we will help you. लेकिन अगर अभी तक कोई question है तो please ask. I will show you कि इसका feedback कैसे आता है, right? उससे पहले हम मैडम पहले क्विज छोटा सा कर लें. इसका इंटरफेस कैसा दिखेगा या पहले बनवा लें इनसे. ओके, सो अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क, बाद में भी इंशाल्लाह बता देंगे, कोई मसला नहीं है. बट दिस इज़ क्वाइट सिंपल. मीनवाइल आपके पास और भी ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल eduate.ai में भी ऑप्शन होती है, जिस तरह ये आप इंटरफेस देख रहे हैं. यू कैन आल्सो यूज़ दिस वेबसाइट बट आई फाउंड इट मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वैरायटी है. यू कैन एक्सप्लोर दैट टू. आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. इसी तरह से इसमें भी असेसमेंट पे जाके आप डिफरेंट ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं. यहाँ क्विज भी है. सो सिंपली राइट समथिंग, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. मैंने यहाँ लिखा. एज यू नो इसमें AI एनहांसमेंट की ऑप्शन है, तो ये पूछेगा मेरे से एनहांस करना है, तो हम उसको वो भी कर सकते हैं. एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. मीनवाइल सेम लाइक क्विजेज, इसमें भी आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो गिव लिंक ऑफ एनी वेबसाइट, तो ये उससे आपको जनरेट कर देगा. एंड सिमिलरली सोक्रेटिव का मैंने आपको बताया था, ये उसका इंटरफेस आप देख रहे हैं सामने. और इसमें भी आपके पास ये क्विज़ और बाकी चीज़ें हैं. इसमें आप शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू, हाउ डू यू लाइक, आप किस तरह से करना चाहते हैं. बट पर्सनली आई लाइक दिस क्विज़ेस सॉफ्टवेयर, जो बड़े आराम से हमें बहुत सारी ऑप्शंस दे देता है. So can you make a quiz with 5 MCQs by using quizzes? बना सकते हैं? Okay. So please go ahead and start making a quiz. जब आप बना लेंगे तो एक दो को हम देख लेंगे किस तरह से उन्होंने किया, वो आप शेयर कर सकते हैं. लिंक सिर्फ उसका शेयर करना है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया है कि आप यहाँ पे शेयर पे जाएंगे एंड देन शेयर विद द स्टूडेंट्स. और उसके बाद जो हमारे पास ये लिंक आएगा, दिस वन यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट ऑन द 3rd एक्टिविटी ऑफ टुडेज डे 4.
डे 4 में आप सिंपल इसको वहाँ पे पेस्ट कर दें, वी विल हैव अ लुक ऑन दैट कि किस तरह से आपने जनरेट किया है. सो प्लीज़ डू इट, यू हैव 5 minutes फॉर दैट. अभी आपने कर लिया काम, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से अगर कोई किसी का रह गया है, सो यू विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम टुडे, आप करके उस पर अपलोड कर सकते हैं. मैं अभी आपके साथ एक ऑलरेडी जो मैंने बनाया हुआ था क्विज वो शेयर करने लगा हूँ, एंड जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से वो अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, राइट. ये QR कोड आपके सामने आएगा, जस्ट स्कैन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस, और फिर उसे अटैम्प्ट करें. आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, अपने इनिशियल्स लिख सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं. इसे स्कैन करके देखिएगा प्लीज़. आपके स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के या आपके सामने या घर पे बैठ के करेंगे तो उसको किस तरह से नज़र आएगा. यू विल फील कि ये इट्स लाइक अ गेम, और उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, इट्स अप टू यू. सो आई कैन सी दैट 55 पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग दिस टेस्ट राइट नाउ, और इसकी एक्यूरेसी भी मुझे बता रहा है. इट इज़ गिविंग मी रियल टाइम फीडबैक कि किस तरह से अटेम्प्ट किया जा रहा है. सो यू कैन सी, आप डिफरेंट इसके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देख सकते हैं, इस तरह से आपको देगा. और यू कैन आल्सो डाउनलोड इट. फाइनली जब आप क्विज ख़त्म कर दें तो आप इसको एक्सेल की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं टू मेक इट अ रिकॉर्ड और फर्दर डिस्कशन के लिए. और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको. फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल शीट दिखा दी है कि अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो वो किस तरह से नज़र आएगा. पार्टिसिपेंट डेटा भी आपको 1 by 1 नज़र आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने और मिस खौला ने इसे अटैम्प्ट किया तो किस तरह से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं. टाइम भी बताएगा, क्विज डिटेल भी बता देगा कि किस तरह से कितने क्लास एक्यूरेसी थी. सो आई बिलीव दैट दिस डेटा कैन गिव अस वेरी गुड इनसाइट, फीडबैक, जिस पे हम मज़ीद अपने स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. विद दिस थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं अभी इधर ही हूँ. बाकी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जो है ना कंटिन्यू करेंगे, और वो भी आपको इसी से रेलेवेंट बताएंगे कि किस तरह से यू कैन जस्ट मार्क योर पेपर्स. थैंक यू वेरी मच.